ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنے والوں استقبال کیجئے اس شاعرہ کا. مائک بھی جھک کے استقبال کر رہا ہے تو آپ تالیوں سے دعا بھی دے دیجئے. دبئی میں بس چکے تمام بھارتیوں کو ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ منگوائے گئے اس نریح بھارتیہ کا پرنام. دلشاد بھائی نے بہت اچھا پڑھا. ان کے بعد میں اگر گاؤں گی تو آپ کو لگے گا کہ سونو نگم کے بعد میں رانو منڈل گا رہی ہے. لیکن میں اتنا اونچا نہیں گاؤں گی سید سر. میں اتنی اونچی آواز تبھی اٹھاتی ہوں جب مجھے پتی سے لڑائی کرنی ہوتی ہے. لیکن منظر بھوپالی سر نے بہت اچھا گیت پڑھا. یہ وہ ہندوستان ہے جہاں ابھی بسنت کی رتو چل رہی ہے, جہاں کرشن کروکشیتر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رتو نام کسما کر رتوؤں میں بسنت ہوں, تو ان کے کئی صدیوں بعد امیر خسرو صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں پھول رہی سرسوں سکل بن. یہ وہ گنگا کا گھاٹ ہے کہ جہاں بسم اللہ شہنائی بجاتے ہیں تو گنگا میں وضو کرتے ہیں اور بالاجی کے مندر میں بیٹھ کر ریاض کرتے ہیں. گرو کریے اپنے بھارت پر, اس بھارت پر کہ جس گنگا کے تٹ پر, جس یمنا کے تٹ پر کرشن بانسری کی دھن چھیڑتے ہیں تو وہیں تاج محل کے محرابوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس پر تھرکتی ہے. آپ اس دیش کے باشندے ہیں. اگر 4 پنکتیاں, جی آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں, آپ اکیلے کیوں بجا رہے ہیں؟ دیکھیے سردار جی بیٹھے ہیں, جس کاریکرم میں سردار ہوتا ہے وہ کاریکرم اثردار ہو جاتا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. آئیے پہلے 4 مصرے اپنے دیش کے نام پڑھتی ہوں. سواگت ہے, سواگت. نہیں, سید سر کا سلیکشن بہت اچھا ہے, کاریکرم بہت اچھا ہوگا. سید سر نے تو مجھ سے پوچھا تھا آپ کیا ماندے لیں گی. میں نے کہا سر سونے کا بھاو دیکھ لیجئے, اس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا. پھر آئیے. پاونی گنگ کے آچمن کی زمین. پہلے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. یدی بھیتر بسا ہندوستان کہیں دھڑک جائے تو ایک بار یہاں سے لے کے انڈمان نکوبار تک پورا بھارت, پورا سدن میرے ساتھ ہو جانا. آپ ایڈوانس پیمنٹ بہت کرتے ہیں. شولے میں ٹھاکر کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے ہی گبر کو مار دیتے ہیں. پاونی گنگ کے آچمن کی زمین, پاونی گنگ کے آچمن کی زمین, کالیا پہ تھرکتے کشن کی زمین, کالیا پہ تھرکتے کشن کی زمین. میں نے دیکھی نہیں کوئی جنت کبھی, میں نے دیکھی تو بس اس وطن کی زمین. واہ 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 واہ, بہت اچھی شروعات. میں نے دیکھی تو بس اس وطن کی زمین. وہ کچے آم کی پھاکیں اچاروں کی مہک لے کر وطن سے آ گیا ہے کوئی پنگھٹ کی کھنک لے کر. وہ کچے آم کی پھاکیں اچاروں کی مہک لے کر وطن سے آ گیا ہے کوئی پنگھٹ کی کھنک لے کر. لگے پردیس کی اس دھوپ میں اگچھاؤں آئی ہے, وطن کی یاد آئی ہے, وطن کی یاد آئی ہے. سید سر آپ کا بہت شکریہ. جو جیون میں بسنت اس سال آپ نے اتارا ہے میرے وہ ادبھت ہے. اور سید سر کمال کے ویکتی ہیں سر, کمال کے. ایک بار ہی مجھے جھیل کے کنارے مل گئے تھے میم, تو جھیل کے کنارے ملے تو یہ بیٹھے بیٹھے وہاں پتھر پھینک رہے تھے. تو میں وہاں سے گزری تو میں نے کہا سر کیا ہوا؟ تو بولا گھر پہ جھگڑا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا جائیے میم کو منائیے. تو بولے نہیں, یہیں بیٹھے بیٹھے پتھر پھینکوں گا. 1 پتھر 2 پتھر لگاتار پتھر پھینکتے رہے. تھوڑی دیر بعد جھیل میں سے ایک مینڈک نکل کر آیا. وہ مینڈک سر سے بولا سر آپ اپنی والی کے چکر میں میری والی کا ماتھا کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ اچھا ہوا سر نے پیمنٹ پہلے کر دیا تو میں یہ وشیشادھیکار کا پریوگ کر پا رہی ہوں. سر نے مجھ سے پوچھا کہ میں گھر میں شانتی استھاپت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر دیکھیے آپ کا خیال تو اچھا ہے لیکن یہ ویٹو پروش کے پاس نہیں ہے. گھر میں شانتی استھاپت کرنے کے لیے پروش کا یوگدان اتنا ہی ہے میم جتنا ہنی سنگھ کا ہندی ساہتیہ میں.
देखिए बजाए तो फिर पूरा सदन झूम कर बजाए। हाँ, तो फिर भी सर ने पूछा मुझसे, तो जो मैं मदद कर सकती थी मैंने सर की। हुक्के वाले भाई साहब, मैंने की मदद। मैंने कहा देखिए पत्नी से कभी भी झूठ ना बोलें। हालांकि मैंने कहा इन्हें, लेकिन यहां मौजूद हर शख्स वो बात सुने कि पत्नी से कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी झूठ भी ना बोलें, क्योंकि सच क्या है वो अपना पता लगा के रहेगी। पत्नी जब बोल रही हो, नैयर सर, पत्नी जी। जब बोल रही हो तो बीच में ना बोलें। हम्म, पत्नी जब बोल रही हो तो बीच में ना बोलें, और पत्नी जब चुप हो तो भूल कर भी ना बोलें। ओफो, बोलती बंद कर दी। तो ये सलाह सुनकर नैयर साहब ने सैयद साहब से पूछा कि बोलना कब है। तो सैयद सर ने नैयर सर से कहा कि देखिए भाई साहब, आपको जितना बोलना है आज की निजामत में बोल लीजिएगा। फिर ये दोनों मिलकर मेरे पति के पास पहुंचे। बोले भाई साहब बोलना कब है? तो बड़ा भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कब बोलना है, लेकिन ये बात पूछकर आपने मेरी जो इज्जत अफजाई की है, मैं उस बात के लिए तमाम उम्र आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तो ये मामला है। नुमान भाई ने हमको बहुत घुमाया था, कहाँ है वो, कहीं दिख रहे हो तो मेरी बात पहुंचे। तो मैंने उनसे पूछा भाभी कि क्या भारत आना जाना होता रहता है? तो बोले हाँ बहुत आता हूं। तो मैंने कहा फिर 4 घंटे की फ्लाइट में क्या करते हैं? तो बोलते कुछ नहीं, मेरी पत्नी 2 किलो मटर देती है, छीलते हुए जाता हूँ, छीलते हुए आता हूँ। सकारात्मकता देखिए, इसीलिए दुबई में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, महिलाओं की उपस्थिति है कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूं, सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूं, बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हूं, हाय हाय। हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर। सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूं, बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हूं, हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर, मैं चूल्हे की भट्टी में भी ख्वाब सलामत रखती हूं। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। मैं चूल्हे की भट्टी में भी ख्वाब सलामत रखती हूँ, वाह वाह। बदन के खोल में सदियों से बंद मैं ही हूं, बदन के खोल में सदियों से बंद मैं ही हूं, बजाए इसके भी इतनी बुलंद मैं ही हूं। बदन के खोल में सदियों से बंद मैं ही हूं, बजाए इसके इतनी बुलंद मैं ही हूं। मुझे पसंद है सारे ही खुश मिजाज, मगर उदास लोगों की पहली पसंद मैं ही हूं। वाह 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 वाह। समेटे अच्छा, हैं ये सुनने के बाद कुछ लोग उदास हो गए। समेटे हैं आंखों के भीतर उदासी, लिख लिख के ये डायरी भर रही हैं। आप सबको सुनाती हूं कि समेटे हैं आंखों के भीतर उदासी, लिख लिख के ये डायरी भर रही हैं। बताओ ए लड़कों की क्या गम है इनको, बताओ ए लड़कों की क्या गम है इनको, जो ये लड़कियां शायरी कर रही हैं। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। देखिए जो लतीफे गढ़ता है और सुनाता है वो समाज का इंतहाई संजीदा व्यक्ति होता है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ और नया सुनाने की। कि वो सुन रहा था मेरी धड़कनों की थाप को। वाह, बस इस दाद को और मुखर करिएगा। मुझे आप ही की तलाश थी, मैंने पूरी दुनिया घूमी, भारत घूमा, लेकिन आप जैसा श्रोता मुझे नहीं मिला। क्या आपको कोरोना में बूस्टर डोज लगा था? तो बस इस दाद को और मुखर करिएगा। मैं पहली बार दुबई आई हूं और यही प्यार समेट कर जाना चाहती हूं ताकि अगले साल फिर से आ सकूं। और मुखर करिएगा दाद कि वो सुन रहा था मेरी धड़कनों की थाप को, वो सुन रहा था मेरी धड़कनों की थाप को, मुश्किल से रोक पाई मैं भी अपने आप को, मुश्किल से रोक पाई मैं भी अपने आप को। पहले तो नाम पूछने करीब आ गया, पहले तो नाम पूछने करीब आ गया, पहले तो नाम पूछने करीब आ
को। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कागज ने दिल की बात सजोई न रात भर, कागज ने दिल की बात। आपने बहुत अच्छी दाद दी मुझे, लेकिन आपने अकेले दी। आप जैसा श्रोता मुझे चाहिए। आपके लिए पढ़ती हूं कि एक ख्वाब अपने दिल का भुलाने के बाद में, पलकों पे आंसुओं को सजाने के बाद में, कवि को ऐसा श्रोता ना मिले तो क्या हाल हो कि एक ख्वाब अपने दिल का भुलाने के बाद में, पलकों पे आंसुओं को सजाने के बाद में, जिसके बिना ये उम्र गुजरनी मुहाल थी, उस शख्स से मिली हूं जमाने के बाद में। कि कागज ने दिल की बात सजोई न रात भर, सांसों ने भी तो खुशबुएं बोई न रात भर, शायर संवारता ही रहा देर तक गजल, एक नज्म इंतजार में सोई न रात भर। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इस नज्म इंतजार में सोई न रात भर, एक नज्म इंतजार में सोई न रात भर, मुझको निहार ले तू किसी दिन करीब से, मुझको निहार ले तू किसी दिन करीब से। सारे नौजवानों की आवाज़ आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग उम्र दराज हो गए हैं, वो भी अपनी उम्र को किसी दराज में डालकर भूल जाएं आज की रात। जी 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 जी, मैंने भी चश्मा लगा रखा है आपको देखने के लिए कि सुरूर इतना किसी का चढ़ गया है, सुरूर इतना किसी का चढ़ गया है, लगे कि आंख में कुछ गड़ गया है, तेरी तस्वीर को इतना निहारा, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। ओहो, कल तुम आई थी ख्वाब में मेरे और तस्वीर खींच ली मैंने। मुझको निहार ले तू किसी दिन करीब बहुत से, अच्छा। मुझको निहार ले तू किसी दिन करीब से, रख दिल पे हाथ धड़कनों को गिन करीब से, रख दिल पे हाथ धड़कनों को गिन करीब से, बाहें गले में डाल के बांधू मिठाई और, बाहें गले में डाल के बांधू मिठाई और, साड़ी में आ लगा कभी तू पिन करीब से। वाह वाह वाह। साड़ी में आ लगा कभी तू पिन करीब से। देखिए, देश का युवा अब जाग चुका है, सारे जागे हुए युवा। वो भाई साहब जो कह रहे थे देख रहा हूं, जी जी जी, आप ही को निवेदन कर रही हूं कि देश का युवा अब जाग चुका है, और जागा इसलिए है कि इंटरनेट के चक्कर में सो ही नहीं पा रहा है। तो देश का युवा सबसे पहले उठता है, अपनी आंख मसलता है और फिर 1.5 GB डेटा खत्म करता है। पहले हम उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, आजकल हम उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को स्पर्श करते हैं। हमारे जीवन की संस्कृतियों में फर्क आ गया है। बातचीत अब कहाँ वो बातचीत, अब तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, और हम खुशनुमा तस्वीरों वाली एक उदास जनरेशन है। आइए कुछ और सुनाती हूं मैं आपको। ख्वाब आंखों में पाला नहीं जा सका, ख्वाब आंखों में पाला नहीं जा सका, वक्त के साथ टाला नहीं जा सका, जिसके दिल में मेरे वास्ते कुछ नहीं, जिसके दिल में मेरे वास्ते कुछ नहीं, वो ही दिल से निकाला नहीं जा सका। वाह 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 वाह। वो ही दिल से निकाला नहीं जा सका। और दुबई के इस खूबसूरत मुशायरे के नाम, आपके नाम सर 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बदलियों सी उमड़ कर चली आऊंगी, बदलियों सी
उमड़ कर चली आऊंगी, मैं सभी से झगड़ कर चली आऊंगी, एक दफा मुझसे मिलने का वादा तो कर, ट्रेन पहली पकड़ कर चली आऊंगी। वाह वाह वाह, क्या कहना है आयुषी, वाह 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 वाह। और इस सीरीज का सबसे बेहतरीन मुक्तक जो मुझे बेहद पसंद है, मुझे आशा है कि आपको भी पसंद आएगा, कि सांस में है रिदम धड़कने ताल में। देखिए जितने सांस में है रिदम धड़कने ताल में, जितने हाथों में मोबाइल है ना वो मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं, सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं, तुम भी फोन की दुनिया को छोड़कर आओ, हम यहाँ बस तुमसे बात करने आए हैं। वाह 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 आयुषी, आदमी मोबाइल के बिना रह ही नहीं पा रहा है। जरा जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए आयुषी। मैं यही बात कह रही थी कि आप मोबाइल अंदर रख लीजिए। आजकल आदमी क्या है, वॉशरूम तक में मोबाइल ले जाता है, इस चक्कर में क्या है, कायम चूर्ण का करियर खत्म हो चुका है। सांस में है रिदम धड़कने ताल में, सांस में है रिदम धड़कने ताल में, उसको सोचूं तो डिम्पल पड़े गाल में, उसको सोचूं तो डिम्पल पड़े गाल में, सांवला रंग और खिल गया जब सुना, अच्छी लगती हूँ उसको खुले बाल में। वाह वाह वाह। ये भी सुने कि किस्मत के लिखे को जाने कैसे कैसे काट गई, किस्मत के लिखे को जाने कैसे कैसे काट गई, वक्त की ये रफ्तार हमें कितने हिस्सों में बांट गई, तेरे मेरे अफसाने तो दीवानों ने पढ़ने थे, तेरे मेरे इन किस्सों को कैसे दीमक चाट गई। वाह 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 वाह। मेरी मुश्किल को अब आसान नहीं होना है, जितने लोग घरों से दूर हैं उनके लिए, कि मेरी मुश्किल को अब आसान नहीं होना है, हिज्र में दिल को भी वीरान नहीं होना है, उससे कहना कि मिलने के तरीके ढूंढे, उससे कहना कि मिलने के तरीके ढूंढे, ये भी कहना कि परेशान नहीं होना है। वाह 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 वाह, बहुत सच्ची सच्ची दिन बातें कट रहे हैं मेरे अभी जिसके नाम से, दिन कट रहे हैं मेरे अभी जिसके नाम से, मिलती नहीं है सुबह उसकी मेरी शाम से, वो राह में मिला तो लगा हाल पूछ लूं, वैसे मैं जा रही थी किसी और काम से। सुनिए कि खेत की पगडंडियां चौका अकेला रह गया, जितने लोग यहाँ बस गए हैं उनके नाम आपको भारत बहुत याद करता है, कि खेत की पगडंडियां चौका अकेला रह गया, घंटियां बैलों की गुम खूंटा अकेला रह गया, गांव के सारे परिंदे शहर में जब जा बसे, गांव के सारे परिंदे शहर में जब जा बसे, नीम की डाली पे एक झूला अकेला रह गया, सब पुराने दोस्तों का आसरा जाता रहा, धीरे धीरे गांव से भी वास्ता जाता रहा, इस तरक्की के मकाम पे मुड़ के देखा तो लगा शहर ने दी रोटियां पर जायका जाता रहा। वाह 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 वाह। ये भी सुने कि बिछौना नर्म है परदेश में लेकिन वतन में तो, मैं चाहती हूँ आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन इन पंक्तियों को आप जितना स्नेह दे सकते हैं उतना लुटाइएगा, कि बिछौना नर्म है परदेश में लेकिन वतन में तो, उतर कर चांदनी बिस्तर खुली छत पर सजाती है, बिछौना नर्म है परदेश में लेकिन वतन में तो, उतर कर चांदनी बिस्तर खुली छत पर सजाती है, कमाई गिन रहे हैं हम यहाँ तन्हा ही कमरे में, वहां मजदूर का माथा हवा भी छू के जाती है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी शायरी, वहां मजदूर का माथा हवा भी छू के जाती है, शायरी हुई। भले कुछ भी नहीं लेकिन, भले कुछ भी नहीं लेकिन हम ही हम करके रखा है, भले कुछ भी नहीं लेकिन हम ही हम करके रखा है, हम ही ने जिंदगी की नाक में दम करके रखा है, हम ही ने जिंदगी की नाक में दम करके रखा है, मेरा कशकोल खुद मैंने ही अपने हाथ से तोड़ा, मेरा कशकोल खुद मैंने ही अपने हाथ से तोड़ा, किया खुद को कलंदर और दिल दमादम करके रखा है,
किया वाह। खुद को कलंदर दिल दमादम करके रखा है। मेरी धड़कन में तेरा नाम सुन लेती है ये दुनिया, मेरी धड़कन में तेरा नाम सुन लेती है ये दुनिया, सो धड़कन की रिदम को यार मध्यम करके रखा है। शिफा जैसी है तेरी हर अदा इस दिल के जख्मों पर, शिफा जैसी है तेरी हर अदा इस दिल के जख्मों पर, तेरे लहजे के मांझे को भी रेशम करके रखा है। वाह वाह वाह। और ये कुछ अलग सा शेर सुनिए कि तुझे देखूं तो दिल की बीट क्वांटम जंप करती है, तुझे देखूं तो दिल की बीट क्वांटम जंप करती है, ए 200 ग्राम भर के दिल क्यों उधम करके रखा है, ए 200 ग्राम भर के दिल क्यों उधम करके रखा है। और यकीन जानिए जब बुर्ज खलीफा 3 रंगों में नहाता है तो वहां बसे हर भारतीय को, यहाँ आने वाले भारतीय पर बड़ा गर्व होता है। अंतिम 4 पंक्तियां कि बराबर में बिठाएगा तराजू में न तोलेगा। बहुत शुक्रिया दुबई। बराबर में बिठाएगा तराजू में न तोलेगा, बराबर में बिठाएगा तराजू में न तोलेगा, बड़े ही नर्म लहजे में वो दिल के राज खोलेगा, बड़े ही नर्म लहजे में वो दिल के राज खोलेगा। दिलों पे राज करने का हुनर सदियों से आता है, ये हिंदुस्तान का जादू सदा सर चढ़ के बोलेगा। वाह 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 वाह।